Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A very warm welcome to all the chief guests here. My topic is loss of selling vote. Vote buying is rarely an isolated action and it perpetuates corruption throughout the entire political system. When a candidate chooses to pay for support rather than completely fairly for votes, they show a disregard for democratic norms and a willingness to use illegal means. Broadly speaking, vote buying obstructs the democratic process by interfering with the rights of citizens to freely decide who will represent them and their interests. This can result in the candidate with the deepest pocket winning the election, rather than the candidate who would best serve their constituents. Elections create a social contract between candidates and constituents who voted with the presumption that the candidates will govern along the lines of their stated policy platforms. Vote buyings enable poor governance and undercut citizens' ability to hold their elected official accountable. If a candidate believes all they need to do to be elected is pay off voters and government officials, they will have no incentive to be responsive to issues their constituents care about. Issues like water, sanitization, education, and unemployment. Along with damaging the candidate's credibility, vote buying deters aspiring political leaders from running for office because it suggests that money, rather than ideas or experience, is how to win an election. That discourages qualified positions. In places where vote buying is common, candidates face the dilemma of needing to mobilize most of their resources to buy the votes and assuming office with significant debts for campaigning. According to international standards, in a true democracy, every citizen has the right to stand for office, subject to reasonable restrictions. Vote buying makes it impossible to meet these standards by penalizing potential candidates who are at an economic disadvantage, especially women and minority politicians. Ask yourself, do you know any potentially great public officials who won't seek office because the cost is too high? Thank you. Jazakallah Team E. Now I call upon Team F to read out the Islamic topic 6. Last sermon of Prophet Muhammad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. My topic is आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा। आपकी वफ़ात के 4 रोज़ पहले तबीयत कुछ संभल गई थी। बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कंधे पर सहारा देकर मस्जिद तशरीफ़ लाए। जमात खड़ी थी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नमाज़ पढ़ा रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आहट पाकर पीछे हटना चाहा, मगर आपने मना फरमा दिया। नमाज के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तसर खुतबा दिया। फरमाया, अल्लाह ने अपने बंदे को इख्तियार दिया है कि चाहे वो दुनिया ले या आखिरत का घर पसंद कर ले। सो इस बंदे ने अल्लाह का जाना ही कबूल किया। ये सुनकर हज़रत अबू बकर रो दिए, इसीलिए कि वो समझ गए थे वो बंदे खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। फिर फरमाया, सुनो अंसर, मुझसे है और मैं उनसे हूँ। मैं तुमको वसीयत करता हूँ कि उनके साथ अच्छा सलूक करना। और देखो, जो चीज़ मैंने हलाल की वो अल्लाह ही के हुक्म से की है, और जो चीज़ मैंने हराम की वो भी अल्लाह ही के हुक्म से की है। फिर फरमाया, ए पैगंबर की बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ए पैगंबर की फूफू सफ़िया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, तुम्हें जो कुछ भी भलाई करना है इस दुनिया में ही कर लो, मैं तुम्हें खुदा से नहीं बचा सकता। फिर आप घर तशरीफ़ लाए। दोशंबा यानी पीर के दिन ज़ाहिर में तबीयत कुछ हल्की थी। हिजरे में मुबारक मस्जिद नबवी से मिला हुआ था। सुबह हो गई थी। आपने पर्दा हटाकर जमात का मंजर देखा।
मुसलमानों का नमाज में मशगूल देखकर आप खुशी से मुस्कुरा दिए। लोग आहत पाकर समझे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तशरीफ़ लाना चाहते हैं। इस कदर खुश हुए कि बेकाबू हो गए। करीब था कि नमाज़ें टूट जाएं और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पीछे हटना चाहा, मगर आपने इशारे से मना फरमा दिया। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रज़ी बाप की तकलीफ़ ना देखी गई, कहने लगी, मेरे अब्बा जान, आपको कितनी तकलीफ़ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेचैनी से ज़ुबान मुबारक से ये इरशाद फरमा रहे थे कि अल्लाह यहूद व नसारा पर लानत करे, इस उन्होंने पैगंबर की ख़बरों को सजदा बना लिया है। मतलब तुम ऐसे मत करना। कभी इरशाद फरमाते देखो, नमाज कभी ना छोड़ना और ग़ुलामों से नेक बर्ताव करना। 12 रबीउल अव्वल 11 हिजरी 36 बरस की उम्र में आपकी वफ़ात हुई और रूह मुबारक जिस्म मुबारक से निकलकर आला इली में पहुंच गई। सहाबे इकराम को जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात की खबर मिली तो जो उन पर गुजरी वो उनके ही दिल से पूछे। उनके दिल पर रंजो गम का पहाड़ टूट पड़ा। उनकी आंखों में दुनिया अंधेरी हो गई। मस्जिद नबवी में कोहरा मचा था। मदीने की गलियों से रोने की आवाज़ आ रही थी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ़ लाए और चेहराए अनवर से चादर हटाकर रूह अनवर की ज़ियारत से दिल की लगी बुझाई। फिर मस्जिद में आकर कुरान की चंद आयतें सुनाकर लोगों को सब्र व तहम्मुल की हिदायत। फिर हज़रत फ़ज़ल बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आपको गुस्ल दिया और आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हिजरे में जहां आपने वफ़ात पाई थी वही दफन किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जज़ाकल्लाहु खैर। जज़ाकल्लाह टीम एफ। अभी क्विज कंपटीशन का नेक्स्ट राउंड स्टार्ट होगा। आई रिक्वेस्ट जवेरिया मैम टू टेक ओवर द competition program. Before that, I request participant team F to come about the dais. Team F. फोटो और वीडियोग्राफी वाले कहाँ हैं? कहाँ गए ये फ़ोटो वीडियोग्राफी वाले? प्लीज़ अपने काम को बाखूबी अंजाम दीजिए। प्लीज़ आ जाएं। फ़ोटो और वीडियोग्राफी वाले उसे अच्छी तरह ले लें प्लीज़। Team G, come about the dais. Next, team heads, come on the dais.
Next, team I. Please come on the dais. Team J, please come on the dais. क्या बात यहाँ पे Savelia ma'am, I request you to start the program. Quiz competition. सब आप लोग एक मर्तबा उठ जाइए. एवरीवन प्लीज स्टैंड अप. ऑल बैठ जाइए. अगेन स्टैंड अप. सिट डाउन. आप हमारे कैलोरीज जा रही राइट. अब आई जस्ट वॉन्ट एवरी वन टू क्लैप योर हैंड्स. 1 2 3 1 2 3 1 2 3. देखते हैं कितने जोर से आप. स्टार्ट. 1 2 3. All your fingers should touch like this, okay? आगे वापस सब. टायर्डनेस चले गया. बोरियत चलेगी ना. ओके जी. जो धूप है आप बच्चे इधर बैठ गए तो अच्छा रहता बिकॉज हाँ जो हनी नहीं आ रही इधर आ जाओ. सारे माइक में जवाब जोर से देंगे. आराम से तसल्ली से डिस्कस करने के बाद देंगे. ओके देयर शुड बी नो कंफ्यूजन. फिर एक्स्ट्रा सवाल हमारे पास नहीं है. थोड़ा कंफ्यूज है हमें. अरे पिछली बार मिल गया था खलीफत का प्रूलर क्या है तो इस बार तंगी है हमारे पास सवालात की. सो लेट्स स्टार्ट. रेडी. ठीक है. तो मैं भी बोलना है उर्दू और इंग्लिश. ठीक है. टीम एफ, टीम जी, टीम एच, टीम आई, टीम जे. So let's start.
from Team F. In which year the voting age reduced from 21 to 18 years? कौन से साल में वोट देने की उम्र को 21 से 18 साल कर दी गई? 16th October 1890. सॉरी, 1890. करेक्ट आंसर. गुड गुड. सी आई विल टेल वन जोक. हमारे मुल्क में 18 साल में वोट देना है और शादी करने की उम्र जो है 21 है. जुल्म हो रहा है. सेकेंड, इट वॉज अ जोक, आप हंस सकते हैं. सेकेंड, टीम जी, व्हाट इज द टेन्योर ऑफ राज्यसभा? इट इज अ परमानेंट हाउस. वेरी गुड, करेक्ट आंसर. टीम H, where do service voters submit their forms to vote? सर्विस वोटर्स डालने के लिए अपने फॉर्म कहाँ जमा करते हैं? ऑफिस, रजिस्टर ऑफिस. रजिस्टर ऑफिस. शादी का तो जोक था, ये रजिस्टर ऑफिस कहाँ से आ गया? Where do service voters submit their forms of to vote? है टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3. टाइमर ऑन है. एक्चुअली आप सोचते रहो, मैं एक बात बोलती हूँ. लाइक यहाँ मैक्सिमम मैरिड वुमेन्स हाउस में होम मेकर्स ने भी पार्टिसिपेट किया है. दे देमसेल्फ हैव लर्न दिस. डन. ये सर्विस वोटर जो ये टर्म्स हैं, तो जो लोग इंडियन आर्म फोर्सेस में हैं, मींस इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी एंड आर्मी, इनके लिए फैसिलिटी होती है सर्विस वोटर की. सेकंड जो कैटेगरी आती है वो स्टेट गवर्नमेंट पुलिस है, जो आउट ऑफ स्टेट वर्क कर रही है. लेकिन कर्नाटका की पुलिस है और वो तमिलनाडु में, केरला में वर्क कर रही है, तो उसको भी सर्विस वोट की फैसिलिटी होती है. और जो तीसरी कैटेगरी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, जो आउट ऑफ इंडिया, वो आउट ऑफ इंडिया है, उनको सर्विस वोटर की फैसिलिटी दी जाती है. अब ये लोग क्या करते हैं, ये अगर उनको वोट डालना है, मान लीजिए कोई कर्नाटका में हो रहा है इलेक्शन और कोई जम्मू एंड कश्मीर में है, तो वो अपने रिकॉर्ड ऑफिस को, अपने हेडक्वार्टर को वो फॉर्म सबमिट करते हैं. ठीक है, तो वहाँ पे आपका जॉब है रिकॉर्ड ऑफिस. टीम जे रेडी? आई. ओके, टीम आई. नहीं शकीला. एफ हुआ था, जी हुआ था, आई. What? Who has right as service voters? Armed force, armed police, government officials. Correct answer. J. What is the full form of ASD? Absentees, shifted and dead. बस only 3 minutes please.
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله जल्दी ठीक है. Team F, when was the first time Election Commission of India made multi-body? पहली बार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कब मल्टी बॉडी बनाया गया? Correct answer. Very good. What is the tenure of MP and MLA? Team G. Very good. Correct answer. 5 years. Team H. How are envelopes marked in service voters? सर्विस वोटर्स में लिफाफे कैसे निशानदा होते हैं? Legislative. Tick tick 1, tick tick 2, tick tick 3. Over. जो सर्विस वोटर की जो कैटेगरी है, तो जब आप रिकॉर्ड ऑफिस को फॉर्म जमा करते हैं तो उसको मार्किंग ए और बी करके की जाती है. छोटा एनवलप ए होता है, बड़ा एनवलप बी होता है. डेट इज आइडिया.
I, who are called, which forms are used for these service categories? Write as service orders के लिए which are the forms used as categories? I, service, Armed force form number 2, armed of police form 2A, government officials form 3. slow and steady. Yes, there is. Rounds. Then next to J. What is ASD list? What is ASD list? ASD list क्या है? ASD list means those voters who are absent or shifted or dead. So on Answer. ये जो एसडी जो लिस्ट है, तो जब वो बीएलओ आपके एरिया का सर्वे करने आते हैं तो कुछ लोग जो घर में मौजूद नहीं होते वो एब्सेंट होते हैं। जो लोग अपने एरिया को शिफ्ट कर जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, वो लोग होते हैं। और तीसरे वो हैं जिनकी डेथ हो जाती है। तो इसी लिस्ट को हम एसडी लिस्ट कहते हैं, मीन्स एब्सेंट, शिफ्ट एंड डेथ। देखो कितना ज़बरदस्त है हमारा इलेक्शन के लिए, पर हम वोट बेचते ही बिकते चले जाते हैं। Who appointed Chief Election Commissioner of India? Who appointed Chief Election Commissioner of India? हिंदुस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर का तकर्रुर कौन करता है? सदर, प्रेसिडेंट। What is the tenure of Rajya Sabha member? 6 years. Shabash, very good. Whom identify of voters is challenged in challenge vote case? Service voters. चैलेंज शुदा वोट में वोटर की शनाख्त को किसके जरिए चैलेंज किया जाता है? आपको कौन आपको चैलेंज? हाँ, लॉयर। Officer of the polling booth. टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3। जब आप वोट देने के लिए जाते हैं तो ऐसा होता है, वहाँ पे पोलिंग एजेंट रहते हैं जो कि पार्टी की तरफ से मुकर्रर किए जाते हैं। अगर क्योंकि अलग अलग पार्टी होती है, तो अगर उसे डाउट हो गया कि आप दूसरी पार्टी के हैं और आप करेक्ट नहीं हैं, तो वो चैलेंज करते हैं कि ये आदमी जो वोट डाला है ये गलत आदमी है, क्योंकि उनको खतरा रहता है वो हमारी पार्टी को नहीं डालेगा, दूसरी पार्टी का आदमी। तो चैलेंज वहाँ कौन करता है? पोलिंग एजेंट। वोटिंग एजेंट को वो जो बुलाता है, चलो मीटिंग को, तुम्हें 500 रुपये मिलेंगे। अच्छा, ओके। आई, हु आर कॉल्ड प्रॉक्सी वोटर्स?
certain service voters who are extended as the facilities of voting from proxy. Voting from proxy authorized by themselves. Such voters are called as classified service voters. प्रॉक्सी वोटर सिंपल, किसी की गैर हाजिरी में वोट कैसा किया जाता है जब उन्होंने नहीं होती। बेटे आपको आउट ऑफ 5 3 मार्क्स नहीं देने वाली हूँ, सोशल टीचर में हूँ, बस अपना बात रखो। Certain categories of service voters has been granted. It was right answer. एक्सक्यूज मी, ये जो प्रॉक्सी वोटर हैं, एक तो सर्विस वोटर्स हैं और कुछ एनआरआई हैं, उनको इसकी परमिशन दी जाती है। वो परमिशन क्या है कि वो खुद प्रेजेंट नहीं होते, लेकिन उनके ज़रिए दूसरा आदमी जाके वोट दे सकता है। ओके, नाउ यू आर कॉलिंग ए क्लासिफाइड सर्विस वोटर मीन्स दैट इज द स्पेशल फॉर सर्विस पर्सन, बट प्रॉक्सी वोटर इज दैट हु वोट्स इन प्लेस ऑफ सम अदर पर्सन। दैट आंसर इज करेक्ट। Thank you. J. Which form is required for ASD voters? Which form is required for ASD voters? ASD voters के लिए कौन से फॉर्म की ज़रूरत पड़ती है? फॉर्म 6, फॉर्म 6, फॉर्म 6, फॉर्म 6 ये थोड़ा नज़दीक में हो सकता, नहीं नज़दीक में, मुझे मालूम नहीं आंसर। फॉर्म 6 ये टाइम है अभी, 30 सेकेंड है। फॉर्म 8, A. Team F. Who is the head of a polling booth? पोलिंग बूथ के सरबराह कौन हैं? Polling officer. Presidency officer. प्रेसिडेंसी में थोड़ा करीब। President. Presiding officer. आंसर किसी भी पोलिंग बूथ जहाँ पे आप वोट देने जाते हैं, वहाँ का जो होम सेल इंचार्ज होता है वो प्रेसिडेंट ऑफिसर है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कत होती है, तो डायरेक्ट जिसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, दैट द प्रेसिडिंग ऑफिसर प्लीज। व्हाट इज द रोल ऑफ आरओ रिटर्निंग ऑफिसर? रिटर्निंग ऑफिसर का रोल क्या है? he gives report with a field verification.
आरओ जो है किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी में इलेक्शन कराने का जिम्मेदार होता है, लेट इट बी पार्लियामेंट इलेक्शन, लेट इट बी असेंबली इलेक्शन। साथ में जो एमएलए एमपी जो ओथ लेते हैं वो आरओ के सामने ही ओथ लेते हैं। Form number 17, 18 and 19 are used for what? Form number 17, 18, 19 किस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं? Form number 17, 18 are used for inclusion, graduation, constituency of any other countries. Correct job. Form number 17, 18, 19 are used for inclusion of name in electoral roll for local authorities like graduates, teachers. I. Which form is used for a statement as to place of ordinary residency by a member of the armed police force of a state who is serving outside that state? रियासत के करेक्ट आंसर लाउडली For what purpose form number 7 is used? किस लिए इस्तेमाल में आता है? टिंजे जल्दी बोलो, मैं एक जोक बोलती हूँ फिर आप लास्ट में। नहीं तो नहीं बोलती। Again for team F, for making new voter ID card, what documents required? हाँ, वोटिंग कार्ड बनाने के लिए हमें क्या क्या दरकार हैं चीजें? Age proof, address proof and photo. Very good, correct answer. What are the responsibilities and functions of Chief Electoral Officer CEO? की क्या जिम्मेदारी है? Supervises the parliamentary and assembly elections in state and union territory. Correct answer. H. See, clapping is one of the good exercise, especially those who sit on chairs and work for hours. नहीं, जोर से तालियां बजाना, भले ही स्टाफ पागल समझे हमने, हमारा टायर्स निकल जाता है. H के लिए, right now? H, are you ready? Who is the head of polling booth? Same question है. अभी एक repeat हुआ भी था. Who is the head of polling booth? Presiding officer. Correct answer.
पर एक कहावत याद आ रही बट पूरी याद नहीं आ रही। नेक्स्ट पर आई, फॉर्म नंबर 3 is used for what? Form number 3 is used for what? Government officials. Government Officials. Servants. Government servants. very good, correct answer. J, which form is used for statement as to place of ordinary residence by member of the armed force? Form number मसला अफवाज के मेंबर की तरफ से आम रिहाइश गाह की जगह के बयान के लिए कौन सा फॉर्म इस्तेमाल होता है? जी ये सब मालूम है ना हम ना? Form 2. लास्ट 10 सेकेंड्स में आंसर मिला, इसे बोलते हैं नहले पे दहला। तुम्हारा बाकी है। ओके, अगेन फॉर टीम एफ, which Khalif was the third Khalif and helped establish the official version of the Quran? कौन सा? Yes, कौन? खालिफ अली रजी अल्लाह। शाबाश, जिन्होंने पूरा एस्टैब्लिश किया। जी के लिए, when the Abbasids take over rule from the Umayyads, shifting the seat of powers to Baghdad, when? कौन से हिजरी में? 750. शाबाश, वेरी गुड। टीम एच के लिए, which Khalifa's murder touched off the first Muslim civil war 1656 to 61 में? ऐसे खलीफा किनका जो कत्ल हुआ जिसकी वजह से एक मुस्लिम सिविल वॉर का नतीज पर पहुंचा? टाइम लिया आराम से। हजरत अली अबू बकर हजरत अली अबू बकर सिद्दीक। हजरत अली अबू बकर सिद्दीक। एक बोलो। हजरत अबू बकर सिद्दीक अल्लाह ताला। एक सेकेंड, एक बात कर सकते हैं? खत्म हो गया। हजरत उस्मान बिस्मिल्लाह, हजरत उस्मान गनी। आई वालों के लिए, how was Abu Bakr chosen? Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu was chosen as a first khalifa. हजरत अबू बकर सिद्दीक radhiyallahu anhu को पहले खलीफा कैसे चुना गया, किस लिए और वजूहात होते? कम्युनिटी। करेक्ट आंसर। Where did the last surviving member of Umayyads house set up a new dynasty after the Umayyads overthrown by Abbasids? कहाँ पर हुई थी उमैयाद्स का? अब्बासियों के हाथों में उमैया का कहाँ पर? जोर से बोला रहे। यस, करेक्ट आंसर। जबरदस्त। Team F, which Khalifa was the second Khalif and was murdered by Persian slave? Second Khalifa हमारे राशिदीन में से उमर रजी अल्लाह। जबरदस्त।
What happened in 1299 AD? Osman Ottoman Empire was formed in Anatolia, Turkey. H के लिए which city was the capital of the Khilafat during the Umayyad period 1661 से 750 पीरियड तक? कौन से खलीफा थे जो उमैयद पीरियड के वक्त सिटी, कौन सी सिटी थी? उस्मानिया। सिटी का नाम बोलो। मदीना। मक्का। मक्का। तारीख बदली जा रही है, हिस्ट्री अब ये भी ऐड कर लिया। आई वाले अब तैयार हैं। The first four caliphs are traditionally referred to as rightly guided, which in Arabic means जबरदस्त, करेक्ट आंसर। जोर से बोलो नहीं तो माइनस। टाई अप हो गए तो हमारे पास प्राइजेस भी कम हैं, तो हमें रॉन्ग डाला। नेक्स्ट फॉर जे, द वर्ड खलीफ फ्रॉम द अरबिक खिलाफत मीन्स, खलीफ का मतलब क्या, खलीफा का मतलब क्या है? जानशीन, करेक्ट। टीम एफ, what Khilafat was established after the rule of the first four Khalifas? ये भी repeated question। हाँ, खलीफा हुए थे, उनके बाद में कौन सी खिलाफत कायम हुई? हाँ, खलीफा नहीं, खिलाफत था। 4 खलीफा को खलीफा राशिदीन, तो कौन सा खिलाफत? करेक्ट आंसर, करेक्ट बोलो ना। खिलाफत उमैय्यद। करेक्ट करेक्ट आंसर। When Ottomans conquered the Byzantine seats of Constantinople and changed its name to Istanbul, when, कब जो है उसे कॉन्क्वायर करने के बाद में इस्तांबुल बोलकर नाम रखे हैं कॉन्स्टेंटिनोपल का? कौन से साल में, कौन सी हिजरी में? 1437 के बाद में लास्ट में 1453 करेक्ट आंसर। वेरी गुड महक, वेरी स्पोर्टिव। आई टीम एच वालों के लिए, हु आर कॉल्ड खुलफाए राशिदीन? खुलफाए राशिदीन किनको कहा जाता है? खुलफाए राशिदीन किन्हें कहा जाता है? हमारे 4 बड़े खुलफा हैं, खलीफा हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? उनको 4 बड़े खलीफों को खुलफाए राशिदीन कहते हैं। वही कौन है?
हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। Very good, very good. What is the name of the Ismailid dynasty that rejected the authority of the Abbasid Khilafats and instead declared its own Khilafat in North America? The Fatimids. Correct answer. Very good. J वालों के लिए in what city were Abbasid Caliphs maintained as powerless figurehead following of the Mongol sack of Baghdad in 1258? हाँ 1258 में बगदाद की मंगोल गोरी के बाद अब्बासी खलीफा किस शहर में बेख्तियार थे? तबकी जी डिसाइड करें, अभी वक्त है। नेक्स्ट कायरा में इंग्लिश कायरा है। ओके, टीम एफ के लिए सूरा अल आराफ इज मदनी और मक्की, ये मदनी है या मक्की? टाइम नहीं दिया जाएगा, इट इज जल्दी से, मक्की है या मदनी? सूरा अल आराफ करेक्ट आंसर, शाबाश। टीम जी के लिए सूरह अल फातिहा इज मदनी और मक्की? फर्स्ट, शाबाश, करेक्ट आंसर। एच के लिए सूरह अल तौबा इज मदनी और मक्की? करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर। आई के लिए सूरह अल निसा मदनी है या मक्की? मदनी। करेक्ट, इंशाल्लाह। सूरह अल मैदा, सूरह अल मैदा मक्की है या मदनी? मदनी, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, टीम एफ के लिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अल्लाह's नेम अल खाफिद? अल खाफिद अल्लाह की सिफत की माने बताइए। मौजूद। लास्ट सवाल, ऑडियंस से रिलीज होंगे, प्राइजेस का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कुछ और तमाम खाली। सॉरी, नेक्स्ट जी के लिए रिड्यूसर है बस।
What is the meaning of Allah's name Al-Quddus? Correct answer. H. What is the meaning of Allah's name Al-Musawwir? मुसव्विर के माने क्या है? Correct answer. What is the meaning of Al-Wahhab? The giver of gift. Very good, correct answer. What is the meaning of Al-Fattah? Who gives success? इससे जो है हमारा कंपटीशन यहाँ इन लोगों का ख़त्म होता है। वो जॉब की हमें वादा की थी तो झूठा हो जाता है। एक क्या होता है, एक जगह पर एक गांव में एक गांव के जो ये रहते ना पंचायत पंच रहते हैं, तो उनका एक बेटा शहर जाके अच्छा पढ़ लिख के सीख के आता है। आने के बाद में अपने साथ एक आलिम को भी लाता है जो उन्हें इल्म सिखा सकता है, सिखाने वाले को। सारे गांव वाले एक जगह जमा हो जाते हैं, स्टेज पर जो ही वो साहब के वो पंच बैठे रहते हैं और उनका बेटा सामने भी बैठे रहता है, आलिम यहाँ। तो आलिम को समझ में नहीं आता है ना, जो एजुकेशनर है, जो एजुकेशन देने वालों से समझ में नहीं आता कि सवाल कहाँ से करें। तो उन्हें पहला सवाल करता है कि अच्छा इस्लाम में कितने फ़राइज़ हैं बोलकर। तो कोई 500 बोलता है, कोई 400 बोलता है, कोई जो है 15 बोलता है। तो बेचारा बेटा इतना एम्बारेस होते रहता है कि एक भी सवाल जवाब सही नहीं आ रहा, पीछे से उन्हें इशारे से 5 बोलते रहता। इस्लाम के 5 फ़राइज़ हैं। तो फिर बाद में उन्होंने चले गए, बाद अब्बा मैं तो वहाँ से जवाब दे रहा था, तुम्हें कहीं को नहीं बोले, तो उन्हें 50 को नहीं मान रहा, 500 को नहीं मान रहा, 5 को मान लेता है तेरा आलिम घर को। तो ऐसी हालत हम लोगों की है, लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से। बेसिक चीज़ों को हमने इल्म रहना है। हमारे मुल्क में इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ दी गई है, एज ए सिटीज़न हमारे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं हमने मालूम रहना है। छोटे छोटे चेंजेस और छोटा छोटा हमारे वास्ते जो चीज़ें फराहम की गई हैं, उसे हमें किस तरीके से हमारे डेली लाइफ में रूटीन में लाती हैं, यूज़ कर लेती हैं, उसी से जो है हमारा लाइफ का एक सक्सेस विजन होता है। थैंक यू सो मच एंड वेटिंग फॉर रिजल्ट्स। अभी आप लोगों का एग्ज़ाम हुआ है, इसमें जो टीम टी है ए, ई और आई टीम, ए, ई एंड जो आई टीम है, ये तीनों टीमों को स्टेज पे आना है और इसी में डिसीजन लिया जाएगा कि फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन सी टीम होगी। तो प्लीज़ ए, ई, आई, बाकी टीम चली जाएं। ए, ई, आई टीम यहाँ पे तशरीफ ले आए, प्लीज़ कम। टीम ए, टीम ई, टीम आई, टीम दोनों प्लीज़। यो प्लीज़
टीम AEI आ जाएं, बैठ जाएं। अब उनके सामने कुछ रिवर्स क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अभी तक तो आपको जो क्वेश्चन दिए थे, एक पढ़ा, आपने जवाब दे दिया। क्वेश्चन का मजा तो अभी आपको अब आएगा कि आखिर क्वेश्चन कहते किसको हैं, ठीक है। अभी तो आपको बना बनाया लड्डू मिला और आपने खा लिया माशाल्लाह। अब क्वेश्चन हम पूछेंगे और आपको बताना होगा। प्रोवाइड कर दें इनको, माइक प्रोवाइड कर दें, ये तीनों टीम को माइक प्रोवाइड कर दें प्लीज। उर्दू में इंग्लिश में दोनों पढ़ता है, ठीक है, हम उसमें ऐसे ही कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। दे देंगे, दे देंगे, टाइम नो प्रॉब्लम। तो हम जो क्वेश्चन पूछेंगे टीम ए से, टीम ई से और टीम आई से। तो शुरुआत ए से होगी, उसके बाद ई से होगी, फिर आई से। टीम ए किधर है? ओके, तो टीम ए से पहला क्वेश्चन ये है, एक पर्सिया के गुलाम ने हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला का कत्ल किया। ये बता दे सकते हैं प्रेजेंट में इस पर्सिया को किस नाम से जाना जाता है? एक पर्सिया के गुलाम ने दूसरे खलीफा हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला का कत्ल किया। प्रेजेंटली दिस पर्सिया इज नोन एज। Hazrat Umar Raziyallahu Ta'ala anhu was killed by a Persian slave. Now I am asking, what is the present name of Persia? What is today Persia is called? टीम ए, जब हम उसके लिए चेंज कर देंगे, चेंज कर रहे हैं। दूसरा इस आंसर इसका ईरान, ईरान प्रेसली पर्सिया, नाउ इट इज ईरान। ओके, नाउ टीम ई के लिए आज जब क्लास दिया गया था, वो क्लास मैंने प्रैक्टिकली खुद मैंने लिया था। मैं ये क्वेश्चन करता हूँ कि मैं वो क्वेश्चन बिल्कुल नहीं पूछूंगा जो मैंने आपको पढ़ाया ना हो। और यहाँ पे आप लोग, हमने कहा है अभी तक जो क्वेश्चन है इस तरह की क्वेश्चन डिग्निटी, आप प्लीज़ इस तरह का कोई क्वेश्चन ना करें। अगर आपने क्लास दिया होता और उस पर गौर फिक्र किया होता, इसका जवाब बहुत आसानी से दे दिया होता, लेकिन शायद उस पर गौर फिक्र नहीं किया गया। नो प्रॉब्लम, तो परेशान ना हो, अभी आपको मौका मिलेगा जब तक हम फाइनल में ना पहुँच जाएँ। टीम ई के लिए क्वेश्चन, जब हम पोलिंग बूथ पे जाते हैं तो एक ऑफिसर ऐसा है जो हमारे हाथों में इंक लगाता है, उस इंक को क्या कहते हैं? और उस पोलिंग ऑफिसर को क्या कहते हैं? सवाल सुन लीजिए, उस इंक को क्या कहते हैं? उस पोलिंग ऑफिसर को क्या कहते हैं जो हमारे हाथों में इंक लगाता है? उस पोलिंग ऑफिसर को क्या कहते हैं? उस इंक को क्या कहते हैं? Criminal link or polling officer number 2? Yes, correct job. Now टीम आई के लिए क्वेश्चन, किसी खलीफा ने, यानी एक जो खिलाफत थी उसमें जो है उन्होंने अपनी कैपिटल जो है, अपना सेंटर दमाकस बनाया था।
तो बता सकते हैं दमकस को पहले किस नाम से जाना जाता था? हाउ दमकस वाज नोन प्रीवियसली? Damascus was known previously when Khalifa या खिलाफत में Damascus as its capital. Damascus was known previously. पहले Damascus को किस नाम से जाना जाता था? हम आपको 3 राउंड चलेंगे, पहला राउंड है, अभी 2 राउंड होगा आप लोगों का। Now, second round. Damishq. Ready? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है कि स्टैट्यूटरी बॉडी है? Election Commission of India is a statutory body or constitutional body or any else? Very good, correct answer. तो आप तालियां तो बजा दें ना। किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में इलेक्टोरल रोल बनाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी का इलेक्टोरल रोल तैयार करना, सर्वे कराना, सुपरवाइज कराना, उस ऑफिसर का नाम क्या है? बताएं। सोच के बताएं, जल्दी मत करिएगा। इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रेशन ऑफिसर। यस, करेक्ट आंसर। टीम आई के लिए जब हमारे पास वोटर आईडी होता है उसमें कोई 2 सिंबल होते हैं, वो किस किस अथॉरिटी के सिंबल होते हैं? 2 सिंबल इलेक्टोरल रोल में 2 सिंबल होते हैं, वो किसके किसके होते हैं सिंबल? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और सिंबल ऑफ इंडिया। ओके, करेक्ट आंसर। नाउ दिस इज द थर्ड, इसमें थर्ड राउंड है ये। तो इस राउंड के बाद हमें ये तो मालूम हो जाएगा कि फर्स्ट कौन है, फिर सेकंड थर्ड का मुझे डिसीजन लेना पड़ेगा। तो एक टीम जो होगी वो बाकी रहेगी, बाकी को फिर, ठीक है। तो अब हम टीम जो है ए से क्वेश्चन कर रहे हैं। रेडी हैं आप लोग? कंफर्टेबल हैं? माशाल्लाह। तो ये बताइए, खिलाफत अब्बासी के बाद कौन सी खिलाफत कायम हुई? खिलाफत अब्बासी के बाद कौन सी खिलाफत कायम हुई? खिलाफत अब्बासी के बाद कौन सी खिलाफत कायम हुई? खिलाफत अब्बासी के बाद कौन सी खिलाफत हुई? उम्मीद हुई कि राशिदीन हुई? बताएं। खिलाफत अब्बासी के बाद कौन सी खिलाफत कायम हुई? खिलाफत राशिदीन। एनी मोर आंसर? सोच के बताएं। खिलाफत राशिदीन की, खुलफाए राशिदीन की कोई और खिलाफत बोले? खिलाफत अब्बासी के बाद खिलाफत उस्मानिया कायम हुई थी। क्वेश्चन वाज वेरी इजी, लेकिन सॉरी। चलिए, टीम
ई के लिए क्वेश्चन है, खिलाफत उस्मानिया को कब ख़त्म किया गया? इन विच ईयर ऑटोमन एम्पायर वाज डेमोलिश्ड? इन विच ईयर खिलाफत उस्मानिया को ख़त्म किया गया? किस साल में खिलाफत उस्मानी को ख़त्म कर दिया गया पूरे ज़मीन से? यस, करेक्ट आंसर, माशाअल्लाह। माशाअल्लाह, ये टीम आई के लिए है माशाअल्लाह। एक अच्छा क्वेश्चन है। जो एमएलए हैं, जब वो एमएलए के लिए नॉमिनेशन भरते हैं, नॉमिनेशन के लिए जाते हैं, तो वो किसके सामने ओथ लेते हैं? जब एमएलए वो जाते हैं नॉमिनेशन के लिए तो किसके सामने ओथ लेते हैं? रिटर्निंग ऑफिसर। यस, करेक्ट आंसर। माशाअल्लाह, रिजल्ट ऐसा आया कि फर्स्ट सेकंड थर्ड दोनों डिक्लेयर हो गए, माशाअल्लाह, वेरी गुड। आप वो रिजल्ट जिसका डिक्लेरेशन का है वो इंशाल्लाह डिक्लेयर करेंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड। मैं माशाअल्लाह चीफ गेस्ट को रिजल्ट हवाले कर देता हूँ और वो इस पर अपना डिसीजन ले लेंगी। ये थर्ड और ये फर्स्ट। हमारी जो गेस्ट जो आए हैं, हम चाहते हैं कि अपना थोड़ा सा वक्त दे के आप एक इस महफिल को जो थोड़ा सा इज्जत बख्शें। हम चाहते हैं आपको कैसा लगा जो हमारे गजेटेड ऑफिसर आकाश शहारन एंड मिस ज्योति, इसी तरह मिस्टर गौरव एंड मिस निधि, इसी तरह मिस मुशर्रफ शरीफ। मैं चाहता हूँ आप आइए एक एक करके। अभी मैं मिस्टर आकाश जी को बुला रहा हूँ, आइए और थोड़ा आपने जो है एक अंदाज में बताइए कि आपको ये कैसा लगा ये हमारा प्रोग्राम, प्लीज़। सबसे पहले सबको नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं सिद्दीकी जी का सबसे पहले धन्यवाद करना चाहता हूँ। उन्होंने इतनी इज्जत हमें दी, इस काबिल समझा कि हमें यहाँ बुलाया जाए। बहुत अच्छा प्रोग्राम उन्होंने कंडक्ट करवाया है और हमेशा वो सेवा करते रहते हैं एजुकेशन के मामले में। मुझे लगता है ये बहुत हेल्प करेगा सोसाइटी की। हमें ऐसी चीज़ों की बहुत ज़रूरत है, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ। शुक्रिया। मिस ज्योति, आप कुछ कहना चाहती हैं, प्लीज़ कम। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया भाईजान, इस मेहमान नवाजी कहिए या फिर यहाँ बुलाने और इतनी इज़्ज़त बख्शने के लिए। और बहुत ही उम्दा कार्यक्रम आपने अच्छे से कंडक्ट किया
और जो भी प्रयास आप कर रहे हैं खासकर महिलाओं और लड़कियों के लिए कि वो अपने मज़हब के बारे में और इलेक्शन यानी कि सिर्फ अपने मज़हब के बारे में तो वो शायद कहीं और भी सीख सकते हैं और वो भी आपका बहुत ही मुकम्मल बहुत ही अच्छा प्रयास है। लेकिन एक इलेक्शन कमीशन को लेके जो आपका ये फर्स्ट स्टेप है और जिस तरह से आपने बच्चों को पढ़ाया है, ये कंपटीशन काफ़ी कह सकते हैं कि बहुत ही क्लोजअप का था जिसमें बहुत ही उम्दा जवाब आए हैं। सो इसके लिए आपको कॉन्ग्रेचुलेशन एंड थैंक यू। मैं मिस्टर गौरव से कहूँगा प्लीज़ तशरीफ लाएं। सबको नमस्कार। सबसे पहले तो मैं सिद्दीकी जी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने हमें यहाँ पे बुलाया और आमंत्रित किया और सब कैंडिडेट्स ने काफ़ी अच्छा किया। काफ़ी कैंडिडेट्स को नॉलेज थी और जैसे कि आप जानते हैं कि अब इलेक्शन भी आने वाले हैं तो इनको उसकी नॉलेज होनी चाहिए, पता होना चाहिए, तो बहुत इनको उसकी हेल्प मिलेगी इस चीज़ की। और थैंक यू सिद्दीकी जी और बुलाने के लिए। अब मिस निधि से गुजारिश है तशरीफ लाएं। मिस निधि प्लीज़ कम। हेलो एवरीवन, थैंक यू पहले तो सिद्दीकी सर का। मैं एक्चुअली ये बहुत अच्छा वेल इनिशिएटेड मतलब प्रोग्राम था और बहुत अच्छे से सबने तैयारी की थी और बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे सबके बीच में उनकी तैयारी देखकर। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द बेस्ट टीम। मेरी गुजारिश है जो हमारी स्टेट की जो है जॉइंट सेक्रेटरी है मिस मुशर्रफ शरीफ, आप आइए और अपने कुछ अल्फाज यहाँ पे पेश करिए। अस्सलाम वालेकुम और शुक्रिया सिद्दीकी साहब को जो आपको बुलाए और हमको इतना इज्जत बख्शे। अच्छा लगा, बहुत सारा काम कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि वो इंडिया के बहुत सारे कोने में अपना इदारा को फैला चुके हैं। इसी तरह अगर वो काम करते रहेंगे तो हमारे कौम का बहुत ज़्यादा तरक्की हो। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। Thank you so much, sir and ma'am, for your words. Now I request the participants to please move out of the dais. Next, I request the chief guest, Ms. Rehana Ali, National Vice President, to speak few words. अवार्ड बुलाना उसके बाद जाएंगे। अभी जाने का मतलब नहीं क्या। अभी रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी व यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी अजीज़ माएँ और बहनें, मैं आप सबका खैर मक़दम करती हूँ इस प्रोग्राम में। आप सब ने अपना कीमती वक्त से फारिग होकर आए हैं और हमें साथ दिया इस प्रोग्राम का हिस्सा बने।
जैसा कि आप जानते हैं, आज 25 दिसंबर को नेशनल एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी ने एक इलेक्शन अवेयरनेस और इस्लामिक क्विज कंपटीशन रखा है। ये क्विज कंपटीशन रखने का मकसद ये है कि कैसे उम्मत को हमारे मुल्क में होने वाले इलेक्शन के बारे में सही मालूमात हासिल हो। वही इलेक्शन जैसे हमारे मुल्क के नेता, मिनिस्टर और वज़ीर आज़म और खैर ख्वाह चुने जाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे मुल्क में कितनी बेईमानियां हो रही हैं, कितने दंगे हो रहे हैं और न जाने कितने खून बहाए जा रहे हैं। जालिम कितना बेपर्दा घूम रहे हैं, मजलूम पर कितना जुल्म हो रहा है। कोई जुबान ऐसी नहीं जो हक़ की बात को कह सके, कोई हाथ ऐसा नहीं जो हक़ का साथ दे सके, कोई ऐसा नौजवान नहीं जो मुल्क की इस हालत पर सवाल उठा सके। इन सब के जिम्मेदार सिर्फ जालिम हुकूमत नहीं है, बल्कि वो हर शख्स है जिसमें उन्होंने चुना है, उनकी मदद की है। मदद करने से मुराद ये है कि जिन्होंने अपने हक़ के लिए वोट के बारे में सही मालूमात हासिल न की हो और इसकी वजह से अपना वो कीमती वोट किसी इंसाफ पसंद को देना था जो ना दे सके, तो उन्होंने भी ये जालिम ही की मदद करी है। और हम सब चाहते हैं कि हमारे मुल्क में अमन और इंसाफ करने वाली हुकूमत हो। तो आज इस प्रोग्राम के ज़रिए न्यूज़ कमेटी से मकसद ये था कि आप सबको कैसे उम्मत के लोगों में अपने हक़, अपने वोट के बारे में सही मालूमात पहुँचाई जाए, जैसे हमारे मुल्क में एक इंसाफ पसंद और अमन रखने वाली कायम हो। तो मेरी आप सब से गुजारिश है कि आप सब इस प्रोग्राम को एंड तक आपने साथ दिया और आप यहाँ तक आपका बैठना, सुनना हमारे घर, हमारे लोग और हमारे मुल्क से एक बेहतर मुस्तक़बिल बनेगा इंशाअल्लाह। जज़ाकुल्लाह खैर। Jazakallah, ma'am. Now I request News Committee Chief Mr. M.S.A. Siddiqui sir to speak few words. अस्सलाम वालेकुम, ऑल्सो गुड आफ्टरनून। पहले तो हम सभी का शुक्रिया अदा करते हैं, सभी का धन्यवाद देते हैं कि आप लोग अपना कीमती वक्त निकाल के आए और ख़ासकर पार्टिसिपेंट जो 2 महीने से तैयारी कर रहे थे। बहुत खुशी हुई कि आपने इतनी मेहनत किया और बहुत ही कॉन्फिडेंस से आपने जवाब दिया। ये हमारे लिए बहुत खुशीजनक है, क्योंकि जो ट्रेनर है, जो कोशिश करता है, जद्दोजहद करता है, जब उसकी टीम कॉन्फिडेंस से जवाब देती है तो एक बहुत अच्छा लगता है, खुशी होती है। कम से कम मैं ये चाहता था जो हमारी नकाब वाली जो बहनें हैं, जिस तरह माशाल्लाह दीन की वो शहज़ादी हैं, उम्मत के शहज़ादी हैं, वो जब दुनिया के मामले में आए तो वो गूंगी बहरी ना रहे। मेरा एक मकसद बहुत साफ़ है, वो हर चीज़ का जवाब देने वाली हूँ। ऐसा ना हो कि दीन की पूरी कुरान हम जानते हों, हदीस जानते हों, लेकिन जब हम जालिम हुकूमत के सामने आए तो वहाँ गूंगे और बहरे बन जाए। तो हमें ऐसा दीन की ना ज़रूरत है, ना उम्मत को ऐसे दीन लोगों की ज़रूरत है। हम चाहते हैं हमारी जो ख़वातीनें हैं वो उम्मत के शहज़ादियाँ हैं, उम्मत की शेरनी भी बने। जहाँ भी गलत हो रहा है उनकी ज़बान में इतनी ताकत होनी चाहिए कि उसकी वो आवाज़ उठा सकें। हमारी खामोशी जुल्म को बढ़ाती है। याद रखिए, गवर्नमेंट ही नहीं होती, हम जो खामोश होते हैं। जुल्म इसलिए नहीं बढ़ता कि जुल्म करने वाले ज़्यादा लोग हैं, जुल्म इसलिए बढ़ता है जो हम शरीफ लोग गाय की तरह खामोश रहते हैं। हम जुल्म को सहते रहते हैं, हमारे सामने बहुत चीज़ें गलत होती हैं लेकिन हम खामोश रहते हैं। हम सोचते हैं सब ठीक चल रहा है, हम ये तो सोचते हैं कि हमारा घर कैसे बड़ा हो जाए, हम ये सोचते हैं हमारे बच्चे का कैरियर कैसे बन जाए, हम ये बहुत सी चीज़ें सोचते हैं कि हमारा जो है बहुत अच्छी हमारे पास ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी हो। हम अपने बारे में सोचते हैं लेकिन ना हम उम्मत के बारे में सोचते हैं, ना अपने मुल्क के बारे में सोचते हैं, ना अपने हालात पर हम गौर फिक्र करते हैं। जिस तरह आज एक आपके एरिया में आपको एक क्लीन वाटर मिलता है, तो क्या आपकी फिक्र है आने वाली नस्लों को भी इसी तरह क्लीन वाटर मिले? आज हम जाते हैं गवर्नमेंट ऑफिस में जाते हैं जहाँ अगर हमें इज्जत मिलती है तो क्या हमने सोचा है ये माहौल हमेशा बने, वहाँ पे हमें इज्जत मिले, हमारा जो वर्क है टाइम पे हो? हम कभी नहीं सोचते। हम अच्छी अच्छी रोडों पर चलते हैं या हम ये कभी नहीं सोचते क्या ये रोड हमेशा कायम रहेगी या नहीं रहेगी। तो सवाल इस बात का है, जब हम सोचेंगे तो हम इस उम्मत के लिए कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ें जो है जो अल्लाह कुरान में फरमाता है कि मैंने तुम्हें सबसे पहले इंसान बनाया है। अगर तुम इंसान नहीं बन सकते तो मुसलमान बनने का ख्वाब मत देखो।
अगर तुम इंसान नहीं बन सकते तो मुसलमान बनने का ख्वाब मत देखो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो 63 साल की ज़िंदगी थी, 63 ईयर्स की जो लाइफ थी, तो आपने 40 साल से भी इंसानियत की दावत दिया है। ऐ लोगों को टोपी मत पहनाओ, धोखा मत दो, सच बात कहो, औरतों पर जुल्म मत करो, बच्चों से मोहब्बत करो, बच्चों की इज्जत करो, और जो आपके आलिम दीन हैं उनका इकराम करो। लेकिन शायद ये बातें हमारे लिए सिर्फ एक लेक्चर होती हैं, लेकिन हमारी ज़िंदगी से बहुत दूर हैं। हमारा जिस्म जो कि हलाल से पाक होना चाहिए, वो हराम रोजी से भरा हुआ है। हम लोगों को टोपी पहनाते पहनाते हमारे दिल भी काले हो चुके हैं, हमें इंसानियत ख़त्म हो चुकी है। किसी एक हिंदुस्तान के जो एक फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर है, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने एक बात कही थी कि कौन के लिए कही थी, अगर तुम सलाहियत रखते हो और कौम की मदद कर सकते हो, तो अगर तुम कौम की मदद नहीं करते, यानी लोगों को, सोसाइटी की मदद नहीं करते, तो तुम्हारी हैसियत इस जमीन में जिंदा लाश के अलावा कुछ नहीं है। इफ यू हैव कैपेसिटी टू डू फॉर द उम्मत, फॉर द सोसाइटी, इफ यू आर नॉट डूइंग, यू आर द लाइक ए डेड बॉडी ऑन द अर्थ। आप रहिए IAS, आप मिनिस्टर रहिए, आप नेता रहिए, क्या लेना? भूखा मर रहा है, गरीब पिस रहा है, हर इंसान का घर उजड़ रहा है। आपके बड़े होने से कोई फायदा नहीं है। बड़ा तो तब है जो हम एक दूसरे को आंसू पोंछ लें, हम एक दूसरे को दर्द को समझें, हम इंसानियत को जिंदा करें। लेकिन हमारे पास ये नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम ऐसे माहौल में नहीं रहे हैं। सिर्फ हमारा घर, हमारा परिवार, हर इंसान के पीछे ये है। याद रखिए, अगर मौत आएगी तो कोई आपको रोक नहीं सकता, और आपको जितनी जिंदगी है उसे कोई छीन नहीं सकता। यही हमारा अकीदा है, यही हमारा यकीन है। और आज की दुनिया में कभी किसी शायर ने एक बात कही थी, बहुत अच्छी बात कही थी, जब तू दुनिया में तशरीफ ला रहा था तो तू रो रहा था और दुनिया वाले खुशी मना रहे थे। जब बच्चा आता है, डिलीवरी होती है, बच्चा आता है, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, हर इंसान खुशी मनाता है। किसी को तेरे रोने का गम नहीं रहता। कोई नहीं कहता बच्चा रो रहा है उसे चुप कराओ, बस मुबारक हो, मिठाई खिलाओ, मिठाई खिलाओ, तुम अब्बा बन गए, अम्मा बन गई, इससे बातें होती हैं। तो शायर कहता है, जब तू रो रहा था, आया था दुनिया में, तेरे रोने का गम किसी को नहीं था। तो आज याद रख, आज तो दुनिया से इस तरह चला जा कि जो हंसने वाले थे ये रो दे, और जो तो रो रहा था वो हंसते इस दुनिया से चला जा। ये कब पॉसिबल है? जब हमने लोगों की मदद किया है, हमने अपनी सोसाइटी के प्रति जिम्मेदारी को हमने किया है। अगर हम ये जिम्मेदारी को अदा करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह, याद रखिए, हमारे लिए मुबारक है। ये बहुत बड़ी चीज़ है। इंसान को पैदा किया दर्द इंसान के लिए, कम नहीं थे फरिश्ते इबादत के लिए। बहुत अल्लाह की इबादत में फरिश्ते लगे हुए हैं। इबादत की जरूरत नहीं है अल्लाह को। लेकिन याद रखिए, आज इंसान है, कहते हैं मैन इज अ सोशल एनिमल। आज हम अकेले आते हैं, लेकिन हमारे साथ 4 लोग हमारी खिदमत में लगे रहते हैं। लेकिन हम जाते हैं, उस वक्त भी 4 लोग हमारे साथ होते हैं। हमारी कभी जिंदगी इंडिपेंडेंट हो ही नहीं है, लेकिन हम थोड़ा से सलाहियत में हो जाते हैं, थोड़ा बड़े हो जाते हैं, थोड़ा कमाने लगते हैं, थोड़ा माल आ जाता है, थोड़ा इल्म आ जाता है, तो हम समझते हैं हम मुख्तार हैं। हम मुख्तार बिल्कुल नहीं है, हम बिल्कुल मुख्तार नहीं है। मुख्तार तो तब है जब वो हक अदा करें जिसके लिए हम आए थे। अगर इंसानियत का हक अदा करते हैं, अगर हम लोगों के काम आते हैं, तो वाकई जब मेरा जनाजा होगा, जब मेरी मौत होगी, तो हमें बहुत खुशी होगी। ये बात में होगी, अल्लाह, ए खुदा, ए ईश्वर, आज मैं तेरी मखलूक के साथ, तेरी उम्मत के साथ मैं करके जा रहा हूँ, मैंने हक अदा किया उम्मत का, और इस खुशी के साथ आप जा सकते हैं। मेरी यही गुजारिश है इस्लाम की शहजादियों, आने वाले जो मेहमान हैं हमारे, और जो देर से बैठे हैं, हमारा एक फलसफा होना चाहिए। हमें अक्सर बात होती है कि हम लोगों पर उंगली उठाते हैं, आखिर वो जिम्मेदार है, वो जिम्मेदार है। हमारी बातें 2 है आखिरी बातें। याद रखिए, हम देखें इस उम्मत में, इस सोसाइटी में हमारा रोल क्या है। जिस दिन अपने रोल को हम देखना शुरू कर देंगे, निज़ाम दस्तूर बदल जाएगा, पूरे आलम का निज़ाम बदल जाएगा। लेकिन हमारी कमी क्या है कि अपने रोल को हम नहीं देखते और लोगों के रोल को देखते हैं। दूसरी बात, एक चीज याद रखिए, गधा पीछे देखता है, घोड़ा आगे देखता है। हमें रोने की जरूरत नहीं है, हमारे टारगेट सामने हो तो हम मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। यहाँ तक अपनी बात हम खत्म करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकल्लाह सर।
Now I request Miss Javeria ma'am to declare the results. आज हमारे साथ जो है एक्चुअली सारे के सारे टीम्स जो हैं विनर्स हैं, बिकॉज उन लोगों ने तैयारी की, देखा, एंड मनी वेर देयर, होम मेकर्स थे, माएँ थी, और स्पेशली बहुत सारे लेडीज़ जो यहाँ बैठी थी, उनके बच्चों के फर्स्ट टर्म्स के फर्स्ट ईयर पीयूसी के एग्ज़ाम्स भी चल रहे थे, और कई बच्चे हैं जो पार्टिसिपेट किए हैं ऑलरेडी, इवन देयर टेस्ट वेयर गोइंग ऑन, ताकि क्रिसमस के वेकेशन के पहले जो टर्म्स होते हैं, तो सारे के सारे विनर्स हैं, देयर आर नो लूजर्स। बट इतना है कि जो भी हमने तैयारी की, सीखा, इट वाज नॉट टू विन और लूज, इट वाज टू गेट नॉलेज। हमें उस चीज़ का अंदाज़ा हो, ये चीज़ें हैं, इसका इल्म हमारे पास होना चाहिए। दिस वाज आवर मेन मोटिव। तो द थर्ड प्राइज गोज टू टीम A. The prize distribution will be done on the date and day will be announced, inshallah. Prize. Just declaration of the prize है. Prizes will be given on the head office, Dasar Ali. हाँ, result declaration है. Second prize is for the team I. Congratulations. And I want the team leaders to be here. Any team leaders? Team A के team leader. Yes. Next team I के team leader. And the most सबसे कम लड़के थे ना, अक्सर लड़कियां सबकत ले जाती हैं. I said these boys, बेटे इस बार लड़कियां नहीं आना बोलकर. Very good. I'm bit partial, मम्मी बेटों की ज़्यादा करती हूँ. तो congratulations to boys. हाँ, अब जो है, हाँ, just congratulations. Just congratulations for the group leader who have made a very good initiative. पूरी तैयारी भी आपने कराई, और कोऑर्डिनेशन इतना अच्छा था कि किसी का झगड़ा नहीं हुआ. अक्सर ग्रुप्स में हो जाता है, लेकिन उसे चांस नहीं. इट वाज वेल मेंटेन्ड और बहुत डिसिप्लिन के साथ आप लोगों ने पार्टिसिपेशन किया. थैंक यू सो मच. एक पोएम के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगी हमारे एक यूथ अपकमिंग शायर के लिए, जो पॉलिटिक्स के ताल्लुक से कुछ अपनी कलाम लिखते हैं. अस्सलाम वालेकुम. मेरा नाम तो अब्दुल रहमान है, आप सबको बता दिए हो, नहीं बता, अब्दुल रहमान है मेरा नाम. तो मैं उर्दू में कुछ शायरी भी लिखता हूँ. तो एक मेरे कॉलेज में फंक्शन था, तो उसमें मैंने एक हिंदी में कविता लिखी थी फर्स्ट टाइम, वो इलेक्शन के ऊपर थी. तो अभी मैं वही पढ़ने वाला हूँ, आप सब सुने. कलम जो न लिख सके वही अल्फाज पसंद है, आँखें न देख सके वही अंजाम पसंद है. कलम जो न लिख सके वही अल्फाज पसंद है, आँखें जो न देख सके वही अंजाम पसंद है. नोटों के साथ वोटों की बोली लगाते हो, नोटों के साथ वोटों की बोली लगाते हो, फिर अच्छाई और बुराई में क्यों फर्क बताते हो. ईमान भी बेच दो तुम्हें बिकना पसंद है, ईमान भी बेच दो तुम्हें बिकना पसंद है. कलम जो न लिख सके वही अल्फाज पसंद है. शुक्रिया आप सबका. Jazakallah for the beautiful poem.
I request Ms. Rihana Ali to distribute the prize, and I call upon Team B on the dais. Team B, all the members of Team B. Team B, यहाँ पे present है Team B, please come on the dais. Team leader. A big round of applause, guys. Congratulations. Next, I call upon Team C. Team C. Is Team C present? Next, I call upon Team D. Team D, please come on the dais. Team G, be ready after this. Sorry, Team F, be ready. Congratulations, guys. Next, Team F. Jazakallah, ma'am. जोर से तुम्हें थाने बजे तक तुम्हें एक्टिव होते सो नहीं बजे तक भी नींद आती है। I request Mr. Akash Saharan and Ms. Jyoti to come on the dais to distribute the prize. Please, sir, ma'am. Team G. Team G, come on the dais. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Now I request Mr. Gaurav sir and Miss Nidhi ma'am to come on the dais to present the prize. And Team F, Team H. Team H, please come on the dais.
you, sir. Thank you, ma'am. And now I request Miss Musarrat Sharif, ma'am, to come on the dais. And Team J, please come on the dais. Team J. Thank you, ma'am. मैं अब्दुल अजीज अंकल से दरख्वास्त करती हूँ कि आप डाइस पर आए प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए. एंड सेकंड रनर अप इज टीम ए. प्लीज कम ऑन द डाइस. A big round of applause for team A. Jazakallah, uncle. And the runner-up is Team I. Please come on the dais. And I request Miss Javeria ma'am to present the second prize. Team I. Team I. Congratulations, guys. Jazakallah, ma'am. And the winner of today's quiz competition, Team E. I request you guys to come on the dais. Give it up for them. And I request Miss Rihana Ali to present the first prize. Congratulations, guys. Jazakallah, ma'am. Now I request Ehsanul Rashid, Zone President of South India, to give vote of thanks. अबे मारना डालूं उसे रिकॉर्डिंग हो रही है इसमें रिकॉर्ड को हमारे कमेटी की तरफ से सबका इस्तकबाल किया जाता है.
बेखुसूस मेहमान खुसूसी हर एक